بیرسٹر اسدالدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ ملک بھر میں این آر سی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز وکلاء کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں شبہ ہے کہ مرکزی حکومت پورے ملک میں این آر سی کے نفاذ کی سمت پیش قدمی کر رہی ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر عوام کو محتاط رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس موضوع پر حکومت کو اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے۔ میرے کو یہ سسپیشن ہے I might be proven wrong کہ وہ فائنلی این آر سی کرنا چاہتے ہیں۔ میں پھر سے تلنگانہ گورنمنٹ سے بول رہا ہوں کہ آپ ایشو کرو پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ، پیرامیٹرز بناؤ۔ آپ یاد رکھیے اگر بعد میں فائنل لسٹ آنے کے بعد آپ آ کے ہم کو غلط ہو گیا، سازش ہو گئی، یہ سب باتیں مت کرو۔ اب بھی یہ ٹائم ریئیکٹ کرنے کا ہے، کنسٹرکٹیو کام کرنے کا ہے۔ ممتا بنرجی اپنا الیکشن ہار گئی، اسٹالن اپنا الیکشن ہار گئے۔ ممتا بنرجی تو اپنا بوتھ میں الیکشن ہار گئی جہاں گھر تھا اس کا۔ یہ لوگ سمجھ رہے نہیں، یہ لوگ جتنے لائرز یہاں پر آئے اور جو یہاں پر نہیں آ سکے، پلیز آپ کی سروسز کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگ آگے بڑھیں گے ڈرافٹ لسٹ آنے کے بعد، آپ کو یہ بہت بڑا اجر ملے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے، کیونکہ یہ آپ کو اپنی قابلیت دکھانا ہے اور جینیون ووٹر کو اس کا رائٹ ملنا ہے۔ آپ جانتے کہ دیکھیے ابھی آپ صابر بھائی بھی دیکھے ہوں گے، یونین ہوم منسٹری نے ایک ہائی لیول کمیشن بنایا ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو، اور ان کو یہ بولا گیا ہے کہ جہاں جہاں ڈیموگرافی میں چینج آئے، جہاں جہاں اچانک آبادی بن گئی، وہ کمیشن اس کو دیکھے گا۔ اور تیسری بات جو امیت شاہ نے وہ میٹنگ لی، اس میں کہا کہ جو نام ایس آئی آر میں جو 6 کروڑ نام ایکسکلوڈ ہو گئے وہ اس کو بھی چیک کریں گے۔ امیت شاہ ہوم منسٹر اگر کوئی میٹنگ کرتے تو یاد رکھیے وہ کچا کام نہیں کرتا آدمی، وہ خالی ہوائی فائرنگ نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ برابر وہ ایک پروگرام بنا کے کام کر رہے ہیں۔ اور میرے کو یہ سسپیشن ہے، I might be proven wrong کہ وہ فائنلی این آر سی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہائی لیول کمیشن آف انکوائری ہے، ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج ہے۔ اب وہ بول رہے کہ جہاں پر اچانک آبادی بڑھ گئی وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے، جہاں پر اچانک ہیبیٹیشن بڑھ گیا یعنی علاقہ بڑھ گیا نہیں ہوا۔ ریٹائرڈ سپریم کورٹ جج کو بٹھا کر وزیر داخلہ میٹنگ لے رہے ہیں، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے، یہ ایس آئی آر ایک آسان کام نہیں ہے، اور یہ کھل کے بول رہا ہوں یہ انکلوزیو ایکسرسائز نہیں ہے، یہ ایکسکلوژن کے لیے بنایا گیا ہے۔ مگر ہم کیا کریں گے، ہم کو کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ کا ججمنٹ لا بن جاتا ہے، تو اس لیے ہم تمام کو مل کر یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ میں پھر سے تلنگانہ گورنمنٹ سے بول رہا ہوں کہ آپ ایشو کرو پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ، پیرامیٹرز بناؤ۔ آپ یاد رکھیے اگر بعد میں فائنل لسٹ آنے کے بعد آپ آ کے ہم کو غلط ہو گیا، سازش ہو گئی، یہ سب باتیں مت کرو۔ اب بھی یہ ٹائم ریئیکٹ کرنے کا ہے، کنسٹرکٹیو کام کرنے کا ہے۔ تو ہم امید کرتے کہ ہمارے یہاں پر اس بات کا ڈیمانڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ کو معلوم ہو سکے۔ عنبرپیٹ میں نئے مسلم قبرستان کا اقلیتی بہبود کے وزیر اظہرالدین اور عوامی نمائندوں نے دورہ کیا۔ اس موقع پر رکن قانون ساز کونسل بالموری وینکٹ، ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر روہت بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران اظہرالدین اور دیگر قائدین نے قبرستان میں جاری اور زیر التوا ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور عوام کو یقین دلایا کہ بقیہ کاموں کی تکمیل کے لیے حکومت کی جانب سے درکار فنڈز جلد جاری کیے جائیں گے تاکہ تمام کام بلا تاخیر مکمل کیے جا سکے۔ انہوں نے قبرستان میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو بھی ترجیح دینے کا وعدہ کیا، جن میں اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، نکاسی آب اور سیوریج نظام کی تعمیر کے علاوہ قبرستان کی مجموعی ترقی اور خوبصورتی کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر مقامی عوام نے محمد اظہرالدین اور دیگر سے اظہار تشکر کیا اور امید ظاہر کی کہ اعلان کردہ تمام ترقیاتی کام جلد مکمل ہوں گے۔
कब्रिस्तान का यहाँ पे 3-4 बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कब्रिस्तान ऑलरेडी अनाउंस किया गया था और सब कब्रिस्तान के लिए वाटर वर्क की तरफ से। और मेरे ख्याल में यहाँ पे जो प्रॉब्लम इशूज़ है, क्योंकि ये पहले डंप यार्ड था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जो मेन इशूज़ है यहाँ पे जब भी आप खबर के लिए होते हैं तो यहाँ पे पूरे ईटा पत्थर और दूसरे अलग अलग जो डंप जो पहले हुआ था वो रहा था। यहाँ पे मेन मोहरम डालने का इशू है। इंशाल्लाह जो भी ऑफिसर से पूरा से बात किया तो ये तो बिल्कुल काम ऑलरेडी काम सैंक्शन है ऑलरेडी, तो सारे टेंडर करके काम शुरू करना वो एक मसला है। उसमें मेरे ख्याल में सब में बड़ा मसला है। उसके बाद में स्ट्रीट लाइट्स का है और ट्रांसफार्मर डालने के लिए भी मांग है, इंशाल्लाह उसका भी हम कराएंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी इसके साथ साथ एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे वाटर लाइन नहीं है, तो मैं पूरे जितने भी लोग यहाँ पे आए थे ऑफिसर्स आए थे उनको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और जितने भी यहाँ पे लोग यहाँ के रहने वाले और जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं और जितने भी लोग यहाँ के अमृत पेट के इलाके रोहित बालमोर यहाँ पे आए हुए हैं और फरीद और जितने भी लोग यहाँ पे कमेटी के लोग, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने इस मौका दिया कि मुझे यहाँ पे आने का, क्योंकि बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था और इसमें यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि पहले बाउंड्री वाली बाउंड्री नहीं थी उसमें। मैं मालूम बैंक के सामने बहुत कोशिश करके उन्होंने बाउंड्री वाल लगाया, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे काम कराया। बट लेकिन जो मेन इशू है मुहर्रम का इशू है, मेन इशू खबरों का है, क्योंकि हमने देखा भी जाके वहाँ पे ओपन खबर भी देखा तो वहाँ पर बिल्कुल कचरा है और बिल्कुल पत्ते हैं और जो डंप की चीज़ है तो उसको बिल्कुल साफ करेंगे। हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से ऑनरेडी मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा हम लोग इसका काम कराएंगे और इंशाल्लाह यहाँ पे फिर कोई यहाँ पे शिकायत का मौका नहीं होगा। ये भी मांगे कि यहाँ पे छोटी सी जगह भी हो जहाँ पे जनाजे की अगर लेट हुए नमाज पढ़ाने के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, वो भी करेंगे। काम पूरा हर चीज़ होगा, बट ज़रूर यहाँ पे ऑलरेडी काम सैंक्शन हुआ है, टेंडर लेके काम करना है। मैंने पूरे ऑफिसर से बात किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करिए। वो लोग भी आएंगे तो आप लोग मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के आप लोग काम नहीं करेंगे, हर बार अपने में इख्तलाफात रहेंगे तो फिर काम किसी का भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये काम देखिए, काम ये जो काम है ये कोई पार्टी का काम नहीं है, ये कम्युनिटी का काम है। कम्युनिटी मिलजुल के काम करें इंशाल्लाह ज़रूर आप मांग रहे हो। जो मौजूदा मट्टी है तब उसको निकालने के मट्टी डालेंगे, वही तो कह रहे हैं, वही तो इसीलिए तो वही मिट्टी अगर नहीं निकालेंगे तो फिर उसके ऊपर डालेंगे तो फिर वही होगा, क्योंकि काफ़ी अंदर काफ़ी कचरा है। कब तक मुकम्मल होएगा ये पूरा काम? कोशिश करें, अभी बारिश का भी टाइम है, मानसून का भी टाइम है, तो जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे। जो भी देखना भी था, क्योंकि बहुत से दिन से लोग बोल रहे थे, लेकिन जब मैं खुद अपने आपस से देखा कब्रिस्तान का अच्छा डेवलपमेंट और अच्छा नेपाल में यहाँ पे होगा कि अच्छी बड़ी खबर इतना सिटी में बड़ी जगह बहुत मुश्किल है सिटी में बहुत अच्छा है। और कम्युनिटी सब आए नहीं है, उनका भी उन्होंने भी कहा है कि आपको आगे बढ़ाएंगे, ट्रैवलिंग कर रहा है, जो भी आपको काम बनाएंगे पूरा आगे बढ़ाएंगे। बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स किराए पर हासिल की गई कार लेकर फरार हो गया। मुतासिरा कार मालिक ने पुलिस से शिकायत करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बयान की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मुलजिम और गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ुद्दीन, मैं बल्लागुड़े का रहने वाला हूँ। मेरा कारोबार है F1 कार से। उधर से एक जी आपकी शॉप कहाँ पर है? बल्लागुड़े पे महराज गार्डन की गली में। क्या हुआ? मेरे पास से एक अनस उल रहमान बोल के एक शख्स आए थे, आके उन्होंने गाड़ी किराए पे लिए। मैं उनको नहीं दे रहा था किराए पे गाड़ी। आप सेल्फ ड्राइव पे देते हैं क्या? जी हाँ, सेल्फ ड्राइव पे देता हूँ। तो उन्होंने फॉर्च्यूनर होना, मेरे घर में दावत है, भाई का शादी है बोल के बोले उन्होंने। तो मैं बोला अच्छी बात है, ठीक है बोल के बोला। पहले तो ज़रा आगे पीछे हट रहा था उनकी हालत देख के, फिर उन्होंने बोले नहीं भाई ज़रा अर्जेंट होना है, मेरे को होना है बोल के बैठ गए उन्होंने। बोला अच्छी बात है, ठीक है बोल के फॉर्च्यूनर उन्होंने 2 दिन के वास्ते लिए गाड़ी। क्या किराए पे?
किराया देखो एक दिन 7,000 रुपये में लिए उन्हों, 2 दिन के वास्ते 14,000 रुपये डाले उन्हों। आपको दिए 14,000 हाँ दिए उन्हों, ऑनलाइन डाले? हाँ ऑनलाइन डाले। तो इसके बाद है ना उन्होंने बोले भाई मेरे को 2 दिन होना है, 200 किलोमीटर मैं जा रहा हूँ भाई, जाके आना है, खाली आ जाता हूँ मैं, खाली आज शाम में निकला तो। सिटी पुलिस ने सरद नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 6 जुलाई की शाम खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर फतेह नगर और दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक़िद किया। ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर पुलिस जुबली हिल्स जोन ए रमना रेड्डी की निगरानी में अंजाम दी गई। ऑपरेशन में एक एडिशनल डीसीपी, 2 एसीपीज, 10 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 20 सब इंस्पेक्टर्स और 150 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 गैर कानूनी शराब की दुकानों से 25 लीटर शराब और गैर कानूनी फरोख्त के लिए रखी गई 82 बोतलें जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान एच न्यू टीम की मदद से गांजा इस्तेमाल करने के शुबे में 15 अफराद के मुआयने किए गए, जिनमें से 5 अफराद का नताइज मुस्बत आने पर उन्हें हिरासत में लेकर NDPS एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने दस्तावेजात न रखने वाली 35 2 व्हीलर्स और 5 5 व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर लिया। जुबली हिल्स जोन पुलिस ने कहा कि मुनशियात से पाक समाज कायम करने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఈ కార్డినెంట్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది. సో మొత్తం కూడా ఒక 10 టీమ్స్, 10 కటాఫ్ పార్టీలు, ఒక 150 to 200 మెంబర్స్ని ఈరోజు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేశాము. మా జూబ్లీ హిల్స్ జోన్ పరిధిలో ఉన్న ఆల్ SHOs, ఇన్స్పెక్టర్స్, DIs, SIs వీళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి ఒక 10 టీంలు తయారు చేశాము. ఈ 10 టీంలతోని సెర్చ్ పార్టీస్ ఒక 10, కటాఫ్ పార్టీలు ఒక 10 పెట్టి ఈరోజు ఈ పిట్టల బస్తీ ఏరియా ప్లస్ ఫతేహ్ నగర్ ఏరియా ఇవన్నీ కూడా సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఇవన్నీ సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మాకు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమంది గాంజా యూజ్ చేస్తున్నారనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటే HNU సహకారంతో ఒక 15 మెంబర్స్ని ర్యాండమ్ చెక్ చేసినాము. అందులో 2 పర్సన్సే వచ్చారు, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఇంకా కొంతమంది మీద ఐడెంటిఫై చేసినాము. వాళ్ళు ఈరోజు ఇక్కడ లేరు. బట్ ఎవరెవరైతే ఈ గాంజా యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద రెగ్యులర్ ఫోకస్ ఉంటుంది. సో గవర్నమెంట్ కూడా ఈ గాంజా వీటి మీద చాలా సీరియస్ ఉంది. సో అటువంటి వాళ్ళు ఈ బస్తీ అయినా ఎక్కడైనా యూత్ అయినా పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరు కూడా ఏ రీజన్తో కూడా గాంజా యూజ్ చేయడానికి లేదు. సో అటువంటి వాళ్ళ మీద కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు కార్డినెంట్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లో కూడా ఫస్ట్ యూత్ ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళను ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టి ఈరోజు వాళ్ళ మీద ర్యాండమ్ చెకింగ్ చేయడం జరిగింది. అందులో 2 పర్సన్స్ దొరికారు, ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కొంతమంది ఇక్కడ లేరు. సో వాళ్ళని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ మీద కూడా నిఘా పెట్టి వాళ్ళని పట్టుకుంటాము. అట్లనే ఒక 7 సస్పెక్ట్స్ ఈ ఏరియాలో ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా బెల్ట్ షాప్స్, వేరే చిన్న చిన్న పెట్టి కేసులో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయడం జరిగింది. సో 2 బెల్ట్ షాప్స్ కూడా సీజ్ చేసినాము. అందులో 25 లీటర్స్ లిక్కర్ పట్టుకున్నాము. అట్లనే ఒక 35 వెహికల్స్, 2 వీలర్స్ ప్లస్ 3 వీలర్స్ వితౌట్ ప్రాపర్ నంబర్ ప్లేటు, ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ లేని వెహికల్స్ కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక ఆటో ట్రాలీలో ఒక 5, మొత్తం 35 + 5 40 వెహికల్స్ సీజ్ చేశాము. సో ACB ने मुअत्तल DSP भीम रेड्डी को गैर मुतनाज़िब असासाजात के मामले में गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन पहले ACB ने उनकी रिहाइश गाहों, दफ्तर और दीगर मुताल्लिक़ा मुक़ामात पर बड़े पैमाने पर धावे किए थे, जहां से तकरीबन 300 करोड़ रुपए मालियत के ऐसे असासाजात बरामद होने का दावा किया गया था जो उनकी मालूम आमदनी से कहीं ज़्यादा है। ACB के मुताबिक ज़ब्तशुदा दस्तावेज़ और शवाहिद की जांच के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ACB ने गैर महसूब असासाजात के मुबैना मामले में गिरफ्तार मुअत्तल DSP भीम रेड्डी को चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। ACB ने पीर की शाम बदनवानी और गैर कानूनी असासा जमा करने के इल्ज़ामात की तहकीकात के बाद सीनियर पुलिस अहदेदार को गिरफ्तार किया था। हुकाम के मुताबिक केस की मज़ीद तहकीकात जारी हैं और आइंदा चंद दिनों में मज़ीद तफसीलात सामने आने की तवक्को की जा रही है। AISF के कारकुनों ने ज़ेर इल्तिवा फीस रियम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप्स की फौरी इजराई के मुतालबे पर एहतजाज करते हुए नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के कैंप ऑफिस का घेराव करने की खम्मम में कोशिश की। मुजाहिरीन ने रियासत में एक सरकारी यूनिवर्सिटी के क़याम का भी मुतालबा किया, तहाँ पुलिस ने एहतजाज करने वाले तलबा को हिरासत में लिया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई।
डीजीपी सीवी आनंद ने जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म के मुनुगुरु पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंसूबे को तकरीबन एक दहाई कबल इंतजामी मंजूरी मिली थी, ताहम फंड्स की कमी के सबब तामीर मुकम्मल ना हो सकी। बादजा सिंगरानी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, अवामी नुमाइंदों, जिला इंतजामिया और दीगर इदारों के ताउन से यह मनसूबा पाए तकमील को पहुंचा। नए पुलिस स्टेशन में मिनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के बशमूल जदीद सहूलतें फराहम की गई हैं। अहदेदारों ने पुलिस मुलाजमीन को समाज दुश्मन अनासर, आदि मुजरिमीन और मुनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, मसनवी जहानत और CCTNS 3.0 जैसे जदीद निज़ाम से भरपूर इस्तेफादा करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सलकम चेरू के करीब अवेसी तालीमी इदारे की इमारत के मामले में जूं का तू मौक़िफ़ बरकरार रखने का हुक्म जारी किया है। इदारे के इंतज़ामिया ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि कांग्रेस हुकूमत इमारत को मुनहदम करने की कोशिश कर रही है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FTL के अंदर ये इमारत को वाक़ है और ये मामला पहली अदालत की दूसरी बेंच के ज़ेर समाअत है, इसलिए दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। अदालत ने मुशाहिदा किया कि इमारत को बिल्डिंग रेगुलेशन स्कीम यानी BRS के तहत बाकायदा करने की दरख्वास्त ज़ेर गौर है, इसीलिए आइंदा समाअत तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म देते हुए समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। उप्पल में वाक़ सिद्धि विनायक फूड्स की तैयारी यूनिट का फूड सेफ्टी हुकाम ने मुआयना किया, जिसके दौरान कई संगीन खामियां सामने आईं। मायने में मालूम हुआ कि ग़िज़ाई अशिया फर्श पर रखी जा रही थी, कारकुन दस्तानों के बगैर काम कर रहे थे, यूनिट में मक्खियां मौजूद थी और स्टोरेज रैक्स पर जंग लगा हुआ था। इन खामियों के बायस यूनिट को 100 में से 53 नंबर दिए गए। फूड सेफ्टी हुकाम ने खामियों को फौरी दूर करने की हिदायत देते हुए नोटिस जारी की। इंडोमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर हनुमंत राव ने मुताल्लिक़ा तमाम सरकारी महकमों को हिदायत दी है कि तेलंगाना की तहज़ीब और सकाफ़त की अक्कासी करने वाले बोनाल त्यौहार को मुकम्मल हम आहंगी, नज़्म व ज़ब्त और अवामी सहूलतों के साथ कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को गोलकुंडा के श्री जगन्नाथ महाकाली मंदिर में बोनम की पेशकशी के साथ तकरीब का आगाज़ होगा। इसके लिए इंतज़ामात पेशगी तौर पर मुकम्मल कर लिए जाएँ। जिला रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट मंडल के पेगलीपुरम गांव में बरखी का बिल तैयार करने के दौरान पेश आए वाक़े में लाइन इंस्पेक्टर भरत करंट लगने से हलाक हो गया, जबकि लाइनमैन रामदासू शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कच्चे अंडों से तैयार की जाने वाली मायोनीज पर आयद पाबंदी पर मौसर अमल दरामद के लिए रियासत भर में 131 फूड इदारों का मुआयना किया। इस दौरान 5 इदारों से तकरीबन 10 किलोग्राम अंडे से तैयार करदा मायोनीज जब्त करके तल्फ कर दी गई। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। हयातनगर डिपो के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक भाग्यलता हयातनगर रूट पर तेज रफ्तार टिप्पर लारी ने आगे चलने वाली कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस हादसे में जख्मी होने वालों की तादाद और शिनाख्त फौरी तौर पर मालूम न हो सकी। इस हादसे के बाद शाहरा पर तवील ट्रैफिक जाम हो गई, जबकि पुलिस इत्तला मिलते ही वहां पहुंची और ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। कामारेड्डी जिले के बरकूर गांव में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले BC बॉयज रेसिडेंशियल स्कूल में मुबैना तौर पर खाना खाने के बाद 30 तलबा फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। तलबा को रात का खाना खाने के बाद शदीद पेट का दर्द, क़य और दस्त की शिकायत होने पर फौरी तौर पर बांसवाड़ा के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया कि बार बार इस्तेमाल किए गए गर्म तेल और नाक़िस मियार के ग़िज़ाई अशिया की वजह से ये वाक़या पेश आया। जिला निज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े नियालकल में एक खातून पर इल्ज़ाम है कि इसने अपने मुबैना आशिक की मदद से शौहर को हार्पिक टॉयलेट क्लीनर इंजेक्शन के जरिए रगों में दाखिल करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल प्रशांत हाल ही में खलीजी मुल्क से वापस आया था। इसकी बीवी संध्या ने मुबैना तौर पर अपने शौहर को नाजायज़ ताल्लुकात में रुकावट समझते हुए कत्ल की साजिश रची। पुलिस का कहना है कि पहले प्रशांत को
वेंकटसाई उर्फ बंटी के साथ शराब पिलाई गई। फिर दवाखाना ले जाया गया, जहां संध्या ने मुबैना तौर पर इसके रग में हार्पिक इंजेक्शन दे दिया। इससे इसकी मौत हो गई। दौरान तफ्तीश बंटी ने अपने रोल का एतराफ़ किया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके संध्या, अनिल और वेंकटसाई उर्फ बंटी को अदालती तहवील में भेज दिया। विशाखापट्टनम साहिल के करीब समंदर में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के बाद लापता 6 माहीगीरों की तलाश जारी है। इतलात के मुताबिक 7 माहीगीर माहीगीरी के लिए फिशिंग हार्बर से रवाना हुए थे कि साहिल से तकरीबन 10 नॉटिकल माइल दूर एक बड़ी समंदरी लहर से कश्ती उलट गई। कश्ती का मालिक बाहिफाजत बच गया, जबकि दीगर 6 माहीगीर लापता हो गए। इमदादी जहाज के अमले ने लाइफ जैकेट फेंक कर किश्ती के मालिक को बचाया, जो मदद के लिए पुकार रहा था और जहाज की एंकर चेन पकड़े हुआ था। बादशाह इसे फिजाई रास्ते से INS डीगा मुंतकिल किया गया और फिर इलाज के लिए दवाखाना भेज दिया गया। लापता माहीगीरों की तलाश का काम जारी है। अमेरिका के शहर डलास AT&T स्टेडियम में खेले गए 2026 फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इस शिकस्त के साथ ही पुर्तगाल टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जबकि 41 साल आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर रोनाल्डो का वर्ल्ड कप कैरियर भी इख्तिताम पजीर हो गया। अपने आखिरी वर्ल्ड कप मैच के इख्तिताम पर रोनाल्डो मैदान में ही जज्बात पर काबू न रख सके और आप दीदा हो गए, जिसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर आज़म मोदी ने सदारती महल के मेहमानों की खुसूसी किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आज़म मोदी इन दिनों जकार्ता के दौरे पर हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में सरकारी इस्तकबालिया तकरीब में उन्होंने शिरकत की। बाद अज़ां उन्होंने सदारती महल का दौरा किया। इस मौके पर मोदी ने इंडोनेशिया की रिवायात के मुताबिक सदारती महल में मौजूद मेहमानों की खुसूसी किताब में अपने तासुरात दर्ज किए और दस्तखत किए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,